मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदे विद्यादिसागरम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, वासुपूज्य भगवान की, उत्तम दशलक्ष महापर्व की, षोडश काल भावना की, रत्नत्रय महापर्व की, अनंतरत महापर्व की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य अक्षय सागर जी निमित सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, दशलक्ष पर्वದ 9ನೇ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನ ಪರ್ವ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ದಶಲಕ್ಷ ಪರ್ವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಈ ಆಕಿಂಚನ ಪರ್ವವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೇನು ಈ ರೀತಿ ಅನಂತ ಕಾಲ ತನಕ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪರ್ವ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಷೋಡಶಕಾಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಅನಂತರದವೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮೂರು ಏನಿದ್ದೇವೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ರತ್ನತ್ರಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಮೂರು ದಿನ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಯಾವುದು? ಬಹುಶ್ರುತ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರಿಂದ ಗಣಧರರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸುತ್ ಕೇವಲಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾಲದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಈ ಏನು 5ನೇ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲ ಇದು? ದುಸಮ ಕಾಲ. ಯಾವ ಕಾಲ? ದುಷಮ ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚು, ಸುಖದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಸುಖ ನೆಪ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸುಖ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ, ದುಃಖದ ಕಾಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಸಮಯ ತನಕ ಈ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಹಿಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ತನದಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮುನಿಗಳು, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಜಿ, ಒಬ್ರು ಶ್ರಾವಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ? ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶ್ರಾವಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮುನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮಾತಾಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮುನಿಗಳ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಪಿಜ್ಜಿಕ ಮಂಡಳು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋರು. ಹಾಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಮನೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಏನಿದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ತುಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನ್ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಾಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಅಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರು ಅಂತರ ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತ ಅದ್ರ ಅಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನ ಅಂತರಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಯಾರು ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಲಹೆಗೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ದಿನ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಮುನಿಯಿಂದನೇ ಏನು ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹಾಗೆ. ಮುನಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮುನಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಧರ್ಮ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಆ ಧರ್ಮನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು, ಬೆಂಕಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜನೂ ಇರಲ್ಲ, ರಾಜನೂ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಂತೂ ಕೊನೆ ತನಕ ನಾವು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರೆ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಬಹುಸೃತ ಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತರ ವಾಣಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ 11 ಅಂಗ 14 ಪೂರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ದಿನವಾಣಿ ಅಂತೇವೆ. ದ್ವಾದಶಾಂಗ ದಿನವಾಣಿ ಅಂತ ಈ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ದಿನವಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶ್ರುತ ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಯಾವುದು, ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಧರ್ಮ. ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವುದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೇನಿವೆ ಯಾವ ನನ್ನವಲ್ಲ. ಇವೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತಗೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಹಿಂಸೆ. ಕೆಲವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು, ಇದೇನು ಸ್ಥೂಲ ಹಿಂಸೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ಬದುಕು. ಇದು ನನ್ನ ಜೈನದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ನಿಷ್ಪಗರಲ್ಲೇ 4 ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆ. ಆರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುವುದು, ಬೀಸುವುದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಕಸ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 5 ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಂಸೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವಸ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನು ಗದ್ದೆ ಹೊಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೋಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಂದನೇ ಹಿಂಸೆ ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ಸಾಯಿಸೋಸ್ಕರ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಗ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಹಣ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಸಂಪತ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಾರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನೋ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೈನ ಯಾರು ಹೊಡೆಯಲೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು 3 ಹಿಂಸೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಾವು ಇವನು ಹೊಡೆದಿರ್ತೇನೆ, ಬಡ್ದಿರ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ 3ನ ಹಿಂಸೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಇವು 3 ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಸಾಯಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುವಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆರಂಭ ಹಿಂಸೆ,
ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಹಿಂಸೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಹಿಂಸೆ ಇರ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಟ್ಲ ಕಾಣೆನೋ ಅಥವಾ ದನಗಳ ಗೋಷ್ಠಿ ಆತರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೇನು ಕೊಲ್ಲರು, ಉತ್ತಮ ಕೊಲ್ಲರು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತೆ ನೀಚ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡುವುದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಡುವುದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಪಾಪ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾಪ ಮನೆಗಳ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏನೋ ಆ ಜಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆದಿನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವರ್ಣನ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಆ ಶೂದ್ರ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋದು, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮರಿರಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ, ಆ ತರದ ಉದ್ಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸನೋ ಅಥವಾ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗಿಂದು ಪಾಪ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಈ ಅಕ್ಕಿಚನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಚನ್ಯ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಾನೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಮುನಿಗಳು ನೋಡಿ ಈ 10 ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂತರಂಗದ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ 14 ಪ್ರಕಾರದ ಇದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನಿಂದ ಮುನಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೇನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನಂದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ತರ ಏನು ಎಣಿಸಿಲ್ಲ. ತಂತಾನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಿಯಂತಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಯ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಾವು ಸವಸಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರ ಆಗೋದೇ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಯಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಯಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಣ, ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ಯಾಣ, ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣ, ನಮ್ಮ ಲೋಯೆ ಸಮಸ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ 20 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಮಾಡ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 1 ಮಾಡ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. 25 ಸಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಮಾಡದೇ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 48 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು 2.5 ಮಾಲ ಎಷ್ಟು 2.5 ಮಾಲ ಅಷ್ಟೇ 48 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಸ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗೋಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದು ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು 3 ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಸೇತು ಗಾಡಿ ಬಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರದ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ನದಿ ತರ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಉಪಾದ ನಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. हिंदी बोलने क्या अभी तक आपने कन्नड़ में बोला इसको, ठीक है। जैसे अपने कर्म नाश के लिए ऐसे सिद्ध क्षेत्र में गए थे, अभी मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में ध्यान करने से क्या होता है इसके बारे में इनको थोड़ा बताया जाता है। उसमें अपने को ध्यान में अनेक प्रकार के होते हैं, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, इस प्रकार के अनेक प्रकार के। पदस्थ ध्यान मतलब क्या होता है, अपन जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें उच्चारण करना, उच्चारण के साथ जो करते हैं, पद के साथ जो करते हैं उसको पदस्थ ध्यान बोलते हैं। और रूपस्थ ध्यान मतलब अनेक प्रकार के रूप रहते हैं आत्मा के रूप से। हमने अभी बहुत पहाड़ पर जाके बैठे हैं, हाँ, पहाड़ पर जाके बैठने के बाद वहाँ एकांत, कोई नहीं है, मान हम अकेला बैठा हूँ वहाँ पर, पहाड़ पर बैठा हूँ, वहाँ पर कोई नहीं, हम अकेला हूँ। इतनी जोर से बारिश आ रहे हैं, इतने जोर से बारिश आ रहे हैं, वहाँ पर मेरे सिर पर इतने जोर से पानी गिर रहे हैं। ऐसे ध्यान करना, हमारे ऊपर इतना पानी गिर रहे हैं, हमारा आत्मा में जो भी कर्म है वो धो धो कर जा रहे, आत्मा शुद्ध होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपने ध्यान करना, इसको बोलते हैं रूप ध्यान। अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार की बताया साथ में। आपने को पढ़ना है तो जैन सिद्धांत, जैन तत्व विद्या प्रमाण सागर जी को पुस्तक पढ़ो, उसमें सब प्रकार की बताया। उसमें कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे निद्रा होगी, ध्यान करने की विधि से करें ना बहुत अच्छा लगता है, उसी के अनुसार आपको करते जाना चाहिए। और अपना ऐसा भी है, संसार देखो, ये संसार सुखाभास, मतलब अपने को लगता है सुख है ऐसा लगता है, लेकिन सुख नहीं है। देखो इसमें एक इसमें बताया है शास्त्र में, संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, संसार में अगर इतना सुख होता है तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते हैं संसार में। उनको कितना वैभव था, राजमहल था, उनके पास मुत्तु सोने चांदी सब थे, इतना होते हुए उन्होंने क्या किया, त्याग करके सब छोड़ के जंगल में चलेंगे। क्या है ये सब आंकी चिन्ह है, ये कोई भी हमारा नहीं है। ये सब बोलने के लिए ये हमारा पिताजी, हमारा बहन है, हमारा भाई है, हमारा माँ है, ये कोई हमारे साथ नहीं है। कब तक आएंगे, स्मशान तक आएंगे, जब संसार में छोड़ के आएंगे बस आपके अपने रह जाएंगे। अपने को लगता है ये हमारी हमारा पैसा हमारी, मकान हमारी, गाड़ी हमारी है, धंधा हमारी है, सब हमारी है, सब हमारी कुछ भी है ही नहीं, सब इधर के है, सब इधर ही कमाएंगे, इधर ही छोड़ के जाएंगे। कितना भी कमा के रखो, गाड़ी बना के रखो, महल बना के रखो, कुछ भी पैसा बना के रखो, कोई साथ में आने वाले नहीं है। कोई लेके गए तो बता दो कितना ट्रक ले गए, पैसे इकट्ठे करके रखा कितने ले गए, कोई नहीं ले गए, सब इधर ही छोड़ के। लेकिन देखो पैसा का 3 प्रकार के होता है। हमने पैसा इकट्ठे किया, एक तो हम खुद भोगेंगे, क्या खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब कुछ किया, कपड़ा ले लेंगे और जो भी अपने को जो चाहिए वो ले लेंगे, ये भोगने हो गया। दूसरा क्या होगा, पैसा का काम, पैसा दूसरा क्या होगा, दूसरों को दान देंगे, गरीबों को उनके उद्धार के लिए, गरीबों को उद्धार के लिए देंगे, गाय को देंगे, गाय मतलब जो दुखी जीवों को रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए दान देंगे। जो गरीब व्यक्ति पढ़ने में उनको होता नहीं, पैसा नहीं है, पढ़ने की इच्छा है, ऐसे लोगों को देंगे। नहीं तो कहीं
भगवान जी के मंदिर बन रहे हैं, उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर का नया मंदिर बनाने के लिए पैसा देंगे, और कहाँ कहाँ देंगे, और ये अनेक प्रकार के स्थान है, उसकी परिस्थिति के अनुसार अपने देख के वहां पर पैसा दान दिए तो अपने को वही साथ में आया। हमें एक तो करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं तो उसको मंदिर आदि के अच्छे लोग, दूसरे लोगों की सुखी के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने को पैसा का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अब तीसरा क्या होगा, हम खाएंगे भी नहीं, दान भी नहीं देंगे, कहाँ चला जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, वो अनर्थ हो गया। शास्त्र में बताया, आपने जो पैसा इकट्ठा कर रखा वो पत्थर है, क्या है, मिट्टी में जमा के रखा, मिट्टी में गाड़ के रखा, कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, मिट्टी है, उसमें क्या है, सोने चांदी क्या है, पता है क्या, मिट्टी है, पत्थर है, वो क्या है, देखने में चमक रहे, उसमें क्या है, मिट्टी में, उसमें क्या अंतर है, खा सकते क्या, सोना चांदी कितना इकट्ठे खाने को नहीं है, खाने की चीज नहीं है वो, इकट्ठे करने का रखेंगे बस हमारा सोना चांदी तो कुछ है, लेकिन वो कुछ भी अपने आत्म कल्याण के लिए काम की चीज नहीं है। हमारा आत्म कल्याण के काम की चीज क्या है, हमारा शुद्ध भावना, शुद्ध सब्जियों की कल्याण की भावना, दर्शन सिद्ध षोडश कारण भावना, दर्शन आदि भावना, रत्नात्रिक सम्यक दर्शन की भावना, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन में कभी भी ऐसा भावना नहीं बांटे तो हमारा जीवन क्या पैदा, प्राणी में तिर्यंच में हमारे में क्या अंतर बचा, जो जंगल में जो प्राणी रहता है, कहीं भी दिखते ना जो जंतु हुए, उनमें से हमें से क्या अंतर बचा, हम मनुष्य होते हैं, मनुष्य हो क्या, देखो मनुष्य जन्म लिया, हमें सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, सुनाने की शक्ति है ना, देखने की शक्ति है, दूसरों को क्या अच्छा करने के लिए भाव शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को हम दुरुपयोग कर रहे हैं। कई स्थान पर हमारा मौज मस्ती में उड़ा रहे, कान पान में उसी में दिन रात खाएंगे, दिन रात सोएंगे, दिन रात मौज मस्ती करेंगे, क्या है इसमें, क्या है, कुछ है ही नहीं। हमारे साथ आने वाली कुछ भी चीज नहीं है, हमारे साथ कौन सा आएगा। आप मंदिर में जाके 1 घंटा माला करो, कितनी अच्छा लगता है। देखो जब भी आपका समय रहेगा, समय मिलेगा, घर में हो, चिंतालय हो, कहीं भी जाके 1 घंटा अच्छे से नमोकार मंत्र की श्वासोच्छ्वास के, अभी बोला है ना लोगों को, श्वासोच्छ्वास के साथ नमोकार मंत्र की माला ले लो, कितना अच्छा आपका मनुष्य इतना शुद्ध हो जाएगा। वो देखो हमारे जीवन में 24 घंटे हम कर्म ही करते रहे, कितना 24 घंटे सिर्फ कर्म ही करते रहे, अच्छा क्रिया काम कब किया, ऐसे चलते कितने हमारा जिंदगी चले गई पता ही नहीं। क्या किया, मनुष्य जन्म में आके इतना उत्कृष्ट सबसे बड़ा जैन कुल सोने चांदी जैसे हमने क्या है, इतना उत्कृष्ट धर्म हमें मिला है, इसका सदुपयोग नहीं किया। वो शरीर भी नहीं मिला कि नहीं, देखो शास्त्र में बताया उत्तम शरीर मिलना भी बहुत दुर्लभ है, उत्तम क्षेत्र मिलना भी दुर्लभ है। देखो यहाँ पर आपको मंदिर मिल रहा, आपको अच्छा शरीर मिला है, बुद्धि मिला है, और क्या क्षेत्र आसपास के सब व्यक्ति भी अच्छा मिला है, अब सदगुरु भी मिला है, सदगुरु भी साक्षात है भी। अभी अगले काल में अवसर भी काल अंत के काल में कैसा रहता है पता है, कोई नहीं, धर्म की नाम गंध भी नहीं है, सब पापी लोग रहते हैं। कितने ऊंचे शरीर से कहते हैं, कितने ऊंचे शरीर रहते हैं, एक दूसरे को खाते, क्या एक दूसरे को खाते, ऐसा खतरनाक काल आने वाले। उसके बाद जब तक धर्म है तब तक चलता है, उसके बाद क्या है, इसी भूमि पर हम जहाँ आए उसी भूमि पर ऐसा होने वाली है। हमें लगता है ऐसा अच्छा धर्म है, अच्छा वो महल है, ये सब कुछ है, ये भी शासित नहीं है। कितने बड़ा बंगला बनाओ, कितने क्या ऐश्वर्य बनाओ, कुछ भी हमारे साथ आने वाले नहीं है। अगर इस समय में हमने आत्म कल्याण करके नहीं लिया, फिर अगले में हम जैन कुल में जन्म लेगा, ये क्या पता है, किसने बताया क्या, आप अगले जन्म जैन ही बनेगा, किसने बताया, कोई भरोसा नहीं है। जब जन्म मिला है तो उसका उपयोग कर लो, गुरु मिला है, शास्त्र मिला है, ये सब कुछ मिला है। उसको मिलने के बाद हम कम से कम आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। ये आत्मा अनादि काल से क्या भटकते 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 आए, कहाँ का भटके,
बचा है क्या जगह? शास्त्र बताते कैसे बताए, हम जो भी खा रहे हैं ना, अभी जो पहले काटे छोड़ा हुआ, क्या बता रहे हैं, हमने जो काटे छोड़ा हुआ भी खा रहे हैं, एक भी बचा नहीं। 3 लोक में एक जगह बचा नहीं। तो कितने जन्म लिया पता नहीं, कौन से जन्म में लिया है सब पता नहीं, कहाँ कहाँ जाके आया। नरक देखने अब लगता है नरक नहीं गए, नरक में कितने बार गए पता नहीं, स्वर्ग में गए नहीं, क्या स्वर्ग में गए पता नहीं, और मनुष्य में नहीं गया, मनुष्य सब जाती है वो में लगता होगा, ये लंगड़ा है, ये बधिरा है, ऐसा लगता है। हमें कितने बार जन्म लिया उसको बोल नहीं सकते। तिर्यंच प्राणी में कितने बार जन्म है, सिंह बने कि नहीं, सुअर, अपने सुअर से घर में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है। हम कितने बार स्वर्ग में पता नहीं, कीड़े मकोड़े सब बन के जगह ही नहीं बचा, हमें घूमने के लिए जगह ही नहीं बचा, सब जगह घूमते फिर भी घूम रहे हैं अभी। फिर एक ही कारण है, देखो जब तक अपने को सच्चा देव शास्त्र के सच्चा नहीं है तब तक आपकी संसार कटेगा नहीं। आज का कौन सा भावना पूजा किया था, सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की पूजा किया ना, सम्यक दर्शन 8 अंग सहित जब अपन पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो अपना एक संसार कटने का एक कारण, आपके पास तपस्या करने की शक्ति नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं करो, कम से कम सम्यक दर्शन इतना अटल श्रद्धा से पालन करो, आपका जीवन पार हो जाएगा। शास्त्र ने बताया एक व्यक्ति को अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ अच्छे से, अंत में संलेखन पूर्वक समाधि कर ली उन्होंने, 3 भाव में मोक्ष चले जाएगा। कितना भाव में? 3 भाव में। सम्यक दर्शन के साथ समाधि पूर्वक मरण करो, 3 भाव में हम मोक्ष चले जाएंगे। इतना मतलब आसान की पद्धति अपने शास्त्र में बताए हैं और दूसरे स्थान पर इसकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को अच्छी तरह से पालन करो। 8 अंग सहित होना चाहिए, निसंकित अंग, मतलब जो धर्म में जो शास्त्र में बताया उसमें कभी शंका नहीं करना। जो शास्त्र में बताया ना, सावधान पढ़ो, उसमें बता रहे हैं शंका नहीं करना चाहिए कोई भी शास्त्र में। आपको मोक्ष मार्ग का कारण वही है, निर्दोष गुरु, निर्दोष शास्त्र, निर्दोष देव को नमस्कार करो, उनकी शरण में हो, आपका कल्याण होगा। नहीं तो 3 काल में भी नहीं हो सकता। इसलिए निसंकित होना चाहिए। जो शास्त्र ने बताया ना यही सही है, भगवान ने बताया है। निर्दोष गुरु कैसा होना चाहिए? विषय आशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो तपस्वी सब प्रशस्यते। विषय आशेन्द्र विरक्त होना चाहिए। वसातीतो निरारंभो, कोई प्रकार के आरंभ परिग्रह उनके पास, कल बताया ना 10 प्रकार के परिग्रह, ये 10 प्रकार के परिग्रह गुरु के पास नहीं होना चाहिए, है ना। निरारंभो परिग्रह वो कैसे रहना चाहिए? ज्ञान ध्यान तपोर, वो मुनि महाराज ज्ञान मतलब ज्ञान संपादन स्वाध्याय में सतत निरत रहना चाहिए और उसी प्रकार ध्यान करना चाहिए। ज्ञान ध्यान तपोर, तपस्वी होना चाहिए। उन्हीं को कहते हैं हमारे सच्चे गुरु है। देव भी ऐसे है, देव भी कहीं उधर जा देखते वहां नहीं जाना, जहाँ सच्चा है वह जाओ, जो सच्चा है उसके पीछे पढ़ो। जैसे शास्त्र में एक बताते, जो परिग्रह से जो साधु रहते हैं, गुरु रहता है, उनके पीछे आप पढ़े तो क्या बता रहे हो? जो पत्थर की नाव है, पत्थर की नाव वो उधर पार होते नदी में छोड़ दो, डूब जाएगी, उसको बैठेगा आप भी डूब जाएगा। इसलिए सच्चे गुरु का मार्ग करो। आपको नहीं मिले तो वही कल नहीं, जहाँ है वहां जाओ, वहां जाकर कहो यहाँ वैसे ही साधु आते तो वैसे करे, वही जो सच्चा साधु उनको आराधना करो। जहाँ मिलते वहां जाके करो ना, वहां जाके एक बार करके देखो क्या लगता है आपको, समझ में आएगी बात में ये सच्चा गुरु है कैसे रहता है। हमने ये अभी तक देखा नहीं, सच्चा गुरु कैसे रहता है देखा नहीं, एक बार देख लिया समझ में आएगा ऐसा रहता है। इनके पास कुछ नहीं है, बिहार करते देखो नीचे गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, लोग नहीं है, ऐसे कैसे चला? इनको चौको कैसे होगा? कल चौको कौन लगाएगा? कोई भी चिंता नहीं करो। हमने महाराज के साथ में चले, कोई साथ में कोई नहीं, हम आगे कल हो जाएगा। लेकिन एक विश्वास रखो, जब जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया उनका आहार कभी नहीं होता नहीं, ऐसे
नहीं करो, उपास कोई नहीं देता, कोई ना कोई उसका पुण्य रहता है, वो जीव का पुण्य रहता ही है। अनादिकाल से इतने तीर्थंकर हुए, इतने मुनि महाराज हुए, सब भूखे मरे क्या? कोई भूखे मरते नहीं, सब लोगों को आहार मिल जाता है, ऐसा कोई चिंता नहीं करो। मतलब उसी प्रकार अपने चलेगा ना उत्कृष्ट रूप से सब हो जाता है। अपने शिथिलाचार करेगा तो कैसे शिथिलाचार हो जाएगा? होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। सब काम छोड़ के आएंगे लोग। अच्छा मुनि महाराज देखो दिल्ली में क्या हो गया, प्रणब सागर जी गए ना, प्रणब सागर जी कोई नहीं साधु नहीं जाते थे। अब विद्यासागर महाराज ने 2 समय को भेजा, इतना मस्त हो गया वहां पर, सब लोग सच्चे साधु को देखने के लिए उन लोग को। वैसा ही है यहाँ पर भी है, अगर आए तो हो जाता है। बहुत लोगों ने ये किया भी है महाराज के पास जाके, लेकिन आचार्य ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। वही उधर ही मतलब क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है ना। कि बहुत सारे लोग अभी भी है ना, कितने लोग यहाँ से आचार्य के पास जाके परीक्षण कर रहे हैं। मतलब क्या है, क्या नहीं गए, जाकर नहीं दिखे वहां पर उतने तीर्थंकर अभी बोलते लोग यही अभी इस काल में तीर्थंकर जैसे है विद्यासागर महाराज जी, अभी तीर्थंकर जैसे मतलब उनकी उत्कृष्ट आचरण आप कभी पूरा हिस्ट्री पढ़ो, समझ में कितने सारे पुस्तक लिखे अभी, उसको उनके एक एक क्षण में क्या क्या उनके जीवन में घटित होता है वो सब सुनो तो समझ में आता। मतलब उनके पास तपस्या कष्ट है, उनके पास कोई भी आओ जाओ उनको कोई मतलब नहीं, उनको बोलेंगे ना जो भी आत्मकल्याण की बात बोलना बोलेंगे, दूसरा हमें वो चाहिए आशीर्वाद चाहिए, कुछ बोलेंगे द्वेष नहीं। मतलब आप बोलते नहीं है द्वेष नहीं, किसी व्यक्ति पर द्वेष नहीं, लेकिन साधु का काम नहीं है उसके लिए आशीर्वाद, इसके लिए वो नहीं, जो आत्मकल्याण के लिए, जो जीव जंतु की कल्याण के लिए जो भावना है हमेशा आशीर्वाद है। कहीं भी रहो यहाँ से भी आप नमस्कार करो आपका काम हो जाएगी। मतलब इतना उत्कृष्ट है। हम लोग देखते ना कोई लोग इतने कष्ट में रहते हैं, उस समय उनकी माला जिसकी माला कर लेना उनको बेड़ा पार होते, हमें भी चित्र लगता है इतनी उनकी तपस्या का प्रभाव। हमने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को, कहीं भी कष्ट आ जाए, संसार में कष्ट आए, कुछ भी आ जाए, उनकी स्मरण करो। एक नमो लोग सब बोलते है ना, नमाय सब लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, उसमें वो भी आ जाते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र को उत्कृष्ट से करो आपका भी काम हो जाए। लेकिन सद्दान होना चाहिए, सद्दान के बिना कोई काम नहीं होता। उत्कृष्ट रूप से सद्दान करो, यही हमारा बेड़ा पार करने वाले, दूसरा कोई नहीं है। सद्दान पूर्वक काम करेगा आपका कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए आखिर धर्म को अपनाना चाहिए, लेकिन आगे धर्म को छोड़ के हमें वो चाहिए सब जीवन पर हम इकट्ठे करेंगे, यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, साथ में क्या ले जाएंगे, पाप लेके जाएंगे, क्या ले जाएंगे, पाप लेके जाएंगे। इसलिए करना है, मतलब करना ही नहीं है, ऐसा नहीं, अपने धर्म के साथ करते रहो, सत्यानुसार करते रहो, पूरा छोड़ के रहो, ऐसा नहीं बोलते है ना, सब करते जाना चाहिए। एक ऐसा घटना है, देखो परिग्रह की विधि से बताता हूँ। एक साधु है, मानो उनके पास एक लंगोटी रहती है, क्षुल्लक महाराज मतलब एलक महाराज, वो अकेला रहता है। तो एलक महाराज जी कपड़े कितने रहते हैं उनके पास, एक ही लंगोटी रहते हैं। एलक महाराज जी एक स्थान पर रह रहे थे, उस समय उनकी एक ही परिग्रह, ज्यादा कुछ भी नहीं, क्या सिर्फ लंगोटी है। वो रह रहे थे, एक दिन क्या होता है, उन्होंने कपड़े डाले थे, चूहा कपड़ा खा लिया, क्या चूहा के कपड़ा खा लिया, तो कल क्या पहनेंगे। फिर राजा आया, सेठ जी आए, गांव के सेठ जी, क्या करे, अपना आपका लंगोटी पड़ गया, सेठ जी को बताना पड़ेगा। तो सेठ जी ने क्या किया, फिर दूसरा लंगोटी लाया, फिर वो दूसरे भी डाल दिया उनमें, फिर काट लिया। क्या करे, रोज एक लंगोटी ला रहे क्या इलेक्ट्रिक को। तो क्या बोले सेठ जी, अब एक काम करूंगा, एक बिल्ली डाल के दे दूंगा, बिल्ली यहाँ डाल के यहाँ छोड़ूंगा आपके पास, रात में छुआ नहीं आएगी। फिर वो बिल्ली जाके छोड़ दिया, क्या सेठ जी ने दे दिया यहाँ। बिल्ली क्या करे, फिर नंबर तो वो चूहा तो नहीं आएंगे, फिर बिल्ली को पेट में कौन डालेगा, बिल्ली म्याओ 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 कर दिन भर घूम रहे उनके लोग, ये क्या बात है। फिर को क्या होगा, टेंशन हो गई, किसको,
ये लगी को हम तो कहा के आ रहे ये बिल्ली में आऊंगा कर दे दिन भर घूमते रहे कैसे करें। फिर वो सेठ जी ने बोला महाराज ये काम करेंगे बिल्ली के दूध के लिए गाय लाएंगे। क्या लाएंगे? गैया लाएंगे। गैया ला के यहाँ बांधेंगे उसको दूध निकाल के उसको बिल्ली को दे देंगे काम हो जाएगी अपनी। फिर क्या हुआ बिल्ली तो शांत हो गई। अभी क्या रो रहे गैया रो रहे गैया गैया को पेट में कौन डालेगा? अरे गैया तो पेट में डालना पड़ेगा। गैया दिन भर है ना गैया को बछड़ा है गैया है कौन पालेगा? उसके एक आदमी लाओ। सेठ जी ने बोला हम एक आदमी ला वो गैया को पालन करेंगे और बिल्ली का भी दूध ला के दे देंगे दोनों काम हो जाएगी। फिर आदमी अकेला रहते उनका शादी करना पड़ेगी वो अकेला कैसे रहेंगे उनके संसार हो गए। कितने आ गई बिल्ली आ गई गैया आ गई उनका संसार आ गई। उसके बाद देख वो गैया क्या करते हैं वो अपने आप में सुनते क्या खाने भी चाहिए खेत भी चाहिए खाने के लिए कहाँ से लाए हो गए गैया के लिए। फिर वैसे रास्ते में छोड़ दे खेत कहाँ है सेठ जी कहाँ ला के देते इतने सारे। फिर गैया एक खेत घुस गई एक सब खा लिया। वो सामने वाले आ गई महाराज को चिल्लाने लगे ऐसे कैसे महाराज जी तुम्हारे गैया वो देखो हमारे सब क्या खेत सब खा लिया ऐसे कैसे गाय अच्छे से पालो ऐसे बहुत झगड़ा किया खेत डाल दिया इसके ऊपर के ऊपर खेत डाल दिया। फिर क्या करें महाराज को कोर्ट में जाना पड़ा। महाराज की डेट पूछते महाराज साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं उनके खेत में गाय क्यों कर रहे हैं? तो बोले हमें नहीं पता लंगोटी फेंक देते। कहाँ पर? जज के सामने लंगोटी फेंक दिया। देखो एक लंगोटी परिग्रह इतना बड़ा काम करते हैं इतना साल खरीद रहे तो क्या क्या होगा है ना। एक परिग्रह में इतना होता साधु को अगर साधु पीछे सब कुछ रहती है क्या क्या करते हैं बच्चे को सोच रहा। इसलिए साधु बिना परिग्रह के होने चाहिए और परिग्रह साथ रहोगे आगे पे धर्म नहीं रहेगा दिन भर आत्मरोध ध्यान रहेगा है ना। आत्मरोध ध्यान का कारण होता है इसलिए इसको समझना चाहिए। जब भी है साधु है इस परिग्रह इस पाप से युक्त होना चाहिए तब अपना धर्म सत्य धर्म पालता है नहीं तो नहीं पालेगा। इसलिए सच्चा धर्म को पालना चाहिए सत्य धर्म को। और तो कष्ट जो सच्चे गुरु आएगा उनको व्यवस्थित करो उनको दोष नहीं करना। अगर जो साधु है अगर ऐसा परिग्रही होता है उसके कारण भी अपने को कर दिया है। यहाँ पर अब कोई साधु आते हैं अपनी व्यवस्था नहीं की और एक व्यक्ति ने कहा जी आप ये रखो मोबाइल रखो वहाँ जाने के बाद कुछ बात करो हम आ जाएंगे। क्या हो गई किसने सिखाया? साधु के पास पैसे रहते क्या देने वाले आप नहीं है। ये भी देखना चाहिए ये सब कुछ अपने अपन से वो संतुलित है अपना का भी गलती रहती है दोनों तरफ से। इसलिए सोच के एक बार सेठ जी बहुत बड़ा मकान बनाया था बड़ा बहुत सुंदर मकान बनाया था 8-10 मंजिल का सुंदर मकान बनाया था। एक दिन क्या हुआ उस मकान में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। आग लगने के बाद वो इतना चिल्लाने लगा रोने लगा सब गांव इकट्ठा हो गया इतना जोर से चिल्लाने लगा। तब उनका बड़े बेटा दादा क्या बोलते अरे पिताजी क्यों रो रहे कल तो ही मकान बेच डाला था कल बेच दिया था हमारे पास नहीं है इतना बोलते वो शांत हो गई। कौन? पिताजी शांत हो गए बहुत खत्म हो गया ये मेरा है क्या जान गया आपसे रोज जान हो गए तो मेरा चला गया तो थोड़ी देर में अच्छे से देखते बैठे थे देखते बेटा। फिर उसी समय में दूसरा बेटा आ गया छोटे वाले वो अरे आपको बुझा देते थे ऐसे क्यों करे रहे आप लोग? वो बोले फिर वो क्यों वो तो बेच जाता कल बेच दिया क्या वो तो दूसरे को हो गया हो दूसरे का क्या करें। अरे बाबा हमें आज सुबह गए थे उनके पास उन्होंने मना कर दिया हमें नहीं चाहिए जोर से चिल्लाने लगा क्या होगा हमारा आ गई हमारा
ऐसा कितना खतरनाक है, कितना कर्म हो रहा है ना। मेरा नहीं दूसरे का जानते थे ना क्या है, उनका क्या उनको मना नहीं क्या दोस्त सबको, वो भी दुखी है, हम अकेला नहीं, हमारे से वो भी दुखी है, माने उनका भी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, हमने भी पसीना लिया निकाला, उसको बनाया, वो भी सामने वाले को पसीना निकाल के बनाया, खराब नहीं करना। ये सब सोचने का विषय है। ऐसे अज्ञान काल से इसी कारण से संसार से भटकते घूम रहे। एक बार सैनिक राजा जंगल में गए थे, घूमने गए थे। उस समय एक मुनि महाराज जी जंगल में गए थे, वो ध्यान करके बैठे थे। उस समय सैनिक राजा को लगता है उसका युवावस्था 25 साल की युवक अवस्था में थे मुनि महाराज। उस अवस्था में मानस थे, उनको देख के ऐसा लगता है अरे इस समय राजमहल में रहना इतना सुंदर लड़का है, राजमहल में रहना चाहिए, अभी संसार में मौज मस्ती में रहना चाहिए, ये सब छोड़कर जंगल में ये क्या देवता है, क्या मनुष्य का देवता है, क्या ये कोई स्वर्ग से देव आए होंगे, ऐसे अवस्था में कौन सब छोड़ कर बैठता है, ऐसे सोचता है। सोचते सोचते अनेक प्रकार के चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते धीरे धीरे उनको बहुत विकल्प हो रहा है, ये क्या है, मनुष्य ऐसे रहता है, कोई ऐसे जा करके बैठता है क्या, ऐसे सोचते। हमारे देश में हमारे राज्य में ऐसे भिखारी कोई नहीं रहता, हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है, सबके लिए हम व्यवस्था किया है, ऐसे छोड़ कौन आते हैं, ऐसे करके धीरे 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 उनके पास जाता है, जाके बैठते ऐसे चिंतन करते, आपको कोई भी कमी हो तो मुझे बता देना, आपको सब व्यवस्था करूंगा, मेरा राज्य में कोई कमी नहीं है, किसी को महल बना के दूंगा, वो बना के दूंगा, सब बना के दूंगा, कोई चिंता नहीं करो, आ जाओ। ऐसे करके उन्होंने मुनि महाराज के सामने बोल दिया। बोलने के बाद मुनि महाराज थोड़ा ध्यान से उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने आंख खोलिया, हंसते हंसते बोले महाराज क्या क्या दोगे हमें, क्या क्या दोगे। तब वो बोलते हैं सब इसे बताते हैं आपको सब कुछ दे देंगे, ऐसी अवस्था में आप इतना यौवन तीन छोड़ के दीक्षा देंगे आपने, ऐसे ऐसी बात बताते हैं। तब उसका कारण क्या है, इतने कम उम्र में आपको सब छोड़ के आए। तब वो महाराज कहते हैं ये महाराज ये देखो हम जब गृहस्थ में थे हमें कोई कमी नहीं थी, हमारे घर में इतना बड़ा महल है, वहाँ पर घर पे सोना चांदी धन संपत्ति सब कुछ है, हमें कोई नहीं है। हमारे पिताजी ने हमें शादी भी कर दिया था, भाई है, बहन है, बंधु है, पिताजी है, माँ है, दादा है, दादी है, सब कुछ है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ भरा हुआ, घर पे कोई भरा हुआ सब वस्तु है सर, कोई कमी नहीं है। तब हाँ क्यों छोड़े, फिर ऐसा प्रश्न आ जाता। तो बोलते हैं एक दिन तो ऐसे महल में आराम से रहते थे, उस समय एक दिन उनकी आंख में बहुत जलन हो गई। क्या हुआ, आंख में जलन हो गया। तब पिताजी ने गए डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर नहीं काम कर पाया, डॉक्टर से कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर मंत्रवादी को मंत्र तंत्र करके कुछ करते मतलब उनके पास भी गया, उनसे भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर राजा महाराज कहीं यश कितने भी देश विदेश से सब वैद्य को बुलाया, सबको बुलाया, सब कुछ भी काम नहीं हुई। उनकी वेदना रोज बढ़ती गई। एक दिन ऐसा लगा हम चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, क्या करेंगे, हमारे साथ में कोई नहीं है, इस संसार में हमें कोई नहीं दिख रहा। मैंने एक दिन ऐसे मन में भावना की, हे भगवान इस संसार में हमारा दुखों को कोई लेने वाले नहीं, देने वाले भी नहीं। क्या है संसार में, ना पत्नी सुख दे सकता है, न भाई दे सकता है, न बहन दे सकता है, न माँ बाप दे सकता है। हमारे दुख को कोई कम करने नाश करने वाले कोई नहीं है। ऐसा सोचा, कल तक बचेगा तो हम दीक्षा लूंगा। क्या ले लिया, कल तक बचा तो हम दीक्षा लेके जाऊं। मतलब उनकी परिस्थिति ऐसी हुई, रात में सोई नहीं है, लेकिन जब वो संकल्प करके सोया,
हम कल बजा तो दीक्षा लूंगा करके सोया, सुबह तक नींद आ गई, इतनी अच्छी नींद आई, वो सुबह उठ के चला गया। क्या चला गया? जंगल में चला गया दीक्षा धारण की। इसलिए बोले आखिर जन्म धर्म, जब जो भी हमारा दिखता, कोई भी हमारा साथी नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, ना किसका है ना हमारा कोई है, हम और किसी का नहीं है। जो दिखता है कोई भी हमारा नहीं है, जो अपनी अपनी है कि नहीं? सही है कि नहीं? यही तो आगे चलने ऐसे धर्म, जैन धर्म में मिला है सच्ची सच्ची बात बताने वाली। वो भी 3 लोग के ज्ञाता वीतराग भगवान की मुख से निकली हुई वाणी है। ऐसी वाणी को हम सदा क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। आपको पालन नहीं कर पाते तो भी संतान तो करो, समय दर्शन बचेगा आपकी। वो यही है, यही दर्शन समय दर्शन है। वीतराग भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कोई इच्छा नहीं रहती। आप मायाचार से किसी को झूठ बोल सकते, लेकिन भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते। क्या उनके क्या है लेना देना? तो आगे धर्म को स्वीकार किया है ना, उनका कोई है, वो किसका है? इसी वो धर्म को वो पालते पालते अभी तक आए हैं, आगे भी। वो तो मोक्ष चला गए, हम तो आगे इसी धर्म को स्वीकार करना है, उनकी जैसे हम भी एक दिन चलना है। तब तक हमें संसार में सुखी नहीं है। इसी भावना के साथ आज की भावना क्या, अखिल चन्य भावना को सब लोगों को पालन करने की शक्ति मिले, सब लोग भी इसी को पालन करते चले जाए। आपको भी अनंत सुख तीर्थंकर जैसे महामहिराजों ने जैसे आदित्य धर्म को स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हम सभी लोगों को, जितने भी जीव जंतु हैं, सब लोगों को ऐसे मोक्ष प्राप्त मिले। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अक्षय सागर जी नेमी सागर जी महाराज की, एक कम करोड़ महाराजों की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, कामं मानस ममास्तु देवी। स्वामी माता की जय।